First of all, good evening, everyone. Again, thank you for joining us today for Prabodhan. This is, जैसा आपको पता है, this is our internal leadership and learning series. So this started was an initial spark, and this platform was launched to foster personal growth, inspire deeper collaboration, and ignite knowledge sharing across the organization. So, with your support, we have successfully hosted enriching sessions, two of them already, with excellent team participation and positive feedback all around. And today marks our third session, and we are thrilled to keep the momentum going. So, well, it is my absolute pleasure to introduce Dr. Renu ma'am, who is a powerhouse of financial wisdom, creativity, and inspiration. And thank you so much, Renu ma'am, for taking out time of your busy schedule to be with us today and share your incredible journey and insights. This truly elevates the session. So, although she needs no introduction, but I would definitely love to tell a little bit about her. She is a chartered accountant since 1999 and she has been a part of JCBL family for many years and took charge as a whole-time director in 2022. She leads financial strategy and governance across businesses with a calm, visionary hand, and her accolades are many. She received an honorary doctorate from University of Asia in 2018 and is certified as a certified independent director, director for IPO strategy and business valuation, and in ESG and business responsibility and sustainability. This is all under the aegis of Ministry of Corporate Affairs through Directors Institute and World Council of Directors. Her leadership journey includes pivotal roles such as finance secretary, joint secretary, and head of the legal cell for the Punjab Unaided Technical Institution Association. And you would be very surprised to know that she's also a Fortuna Global Excellence Lifetime Achievement Awardee for 2025 India edition, though a recognition of her lasting impact in the field of business and leadership. So, one very interesting thing about Renu ma'am, she's a published poet and she loves poetry and shairi, and she is also a social media influencer. She has authored three motivational books as well. And she made history by delivering 75 motivational talks in 65 days, and which has earned her a place in the India Book of Records. She believes that true motivation comes from within, and today we are honored to hear from someone who truly lives the philosophy. So, with great pleasure, I now hand over the floor to Renu ma'am to begin our session. And please join me in giving her a warm welcome. Over to you, ma'am. थैंक यू सो मच। सो आज हम बात करेंगे पैसे की, जिसके पीछे दुनिया जाती है। इस चीज को हैंडल करना आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। आज कुछ छोटे छोटे टिप्स से हम जानेंगे कि कैसे, अगर हमारी सैलरी कम भी है, तो हम कैसे अपने रिच माइंडसेट से सिस्टम को आगे लेकर जा सकते हैं, कैसे अपनी वैल्यूएबल एसेट्स को हम सेफगार्ड कर सकते हैं, कैसे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लॉन्ग टर्म के लिए मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इन सब के लिए हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको हम जिंदगी में लेकर चलेंगे तो फाइनेंशियल सक्सेस डेफिनेटली हमारी होगी। कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि अमाउंट कम आ रहा है और हमारी स्पेंडिंग ज्यादा है। इसको मैं ऐसे कहूंगी कि लाइक हम ईएमआई को स्पेंडिंग नहीं मानते, बट वेयरएज इट इज अ स्पेंडिंग। हमने गाड़ी ली, हमारी आज रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी जो ईएमआई जा रही है दैट इज आवर स्पेंड। तो हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, हम ईएमआई की चीजों को ऐड करते चले जाते हैं, क्योंकि आज ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट, हम लोग जब काम करते हैं हम अपने ऊपर भूल जाते हैं कि अपनी हेल्थ के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो काम अच्छा कर पाएंगे और टाइमली चीजों को डिलीवर कर पाएंगे, एंड विच रिजल्ट्स इनटू द मनी। अपनी प्रायोरिटीज को हमें लॉक करना है। हमारे लिए जिंदगी में हमारी सेटिस्फेक्शन कहाँ पे है, जो लोग भूल जाते हैं जब वो पैसा
कमाने लगते हैं और पैसे को खर्च करने की चीजें छोड़ देते हैं कि हमें हमारी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है, क्या हमें जिंदगी में एक्चुअली में किस चीज के ऊपर अपने पैसे को स्पेंड करना है। और अगर कभी बुरा टाइम आ जाए तो उस बुरे टाइम के लिए हमारे पास कितने फंड्स होने चाहिए, कैसे हम उनको मैनेज कर पाए कि अगर आज कहीं किसी रीजन से मेरी जॉब छूट जाती है तो क्या मेरे पास 6 महीने के फंड्स या साल के फंड्स हैं, क्या मैंने उनकी प्रोविजनिंग कर रखी है। वो हमारी स्पेंडिंग में नहीं आएगा, वो हमारी इन्वेस्टमेंट में आएगा। हमारा माइंडसेट कैसा है, जो आया वो खरीद लिया, या हम चलते चले गए, ठीक है इसको जो किसी ने कह दिया वैसा करते चले गए। हम किसी के कहने पे हमने इन्वेस्ट कर दिया। उस इन्वेस्ट करने में आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बड़ी सारी चीजें आ रही हैं जो हमें बड़े सारा ल्यूट करती हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर लो तो ये रिटर्न मिलेगा, इसमें इन्वेस्ट कर लो तो ये रिटर्न करेगा। क्या वो रिटर्न्स सेफ हैं? और आज हमने किसी के कहने पे डाल दिया, थोड़े टाइम के लिए तो हमें रिटर्न्स अच्छी दिख रही हैं, बट उसके बाद वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ चली जाती है हमें समझ ही नहीं आता। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी रिस्क रेशो जो है वो जरूर आपको चेक करनी चाहिए। हम लोग कई बार दूसरों को देखकर कॉपी करते हैं, तो हम हमें अपने लाइफस्टाइल के लिए कभी सामने वाले को देख के कॉपी नहीं करना चाहिए कि उसने ब्रांडेड पहना है तो मुझे भी ब्रांडेड पहनना है, चाहे मेरे सिस्टम में वो चीज है या नहीं है। सो हमें जो अगर कहीं से बोरो करना है तो अपना सिस्टम अपग्रेड करने के लिए बोरो करना है, ना कि अपने लाइफस्टाइल को लोगों को दिखाने के लिए ब्रांडिंग करनी है। मेक योर ब्रांड योर सेल्फ। अगर आपकी अपनी ब्रांडिंग है तो आपको किसी और का ब्रांड पहनने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस आप में मनी को लेकर बहुत होनी चाहिए। दूसरी बात, लोग पैसा बहुत कमाते हैं पर रिश्तों में अपनी इन्वेस्टमेंट अपना टाइम देना भूल जाते हैं। जब हमारे साथ अच्छे लोग जुड़े होंगे और हमारा कभी टाइम खराब आता है या जैसा भी टाइम आता है, तो क्या हमने ऐसे लोग कमाए हैं जो हमारे साथ किसी भी मुश्किल में आकर खड़े हो जाएंगे, या लोग हमें अपना वैसा समझते हैं कि हम किसी की मुश्किल में आकर खड़े हो पाएंगे। मनी जो है, इट्स वर्क लाइक अ एनर्जी। if you attract money, if you invest money, then money will flow with you like anything. So these are the rules for the financial success. Next. अब फाइनेंशियल सक्सेस को हमारे कौन सा माइंडसेट जो है वो ड्राइव करता है? स्ट्रेटजी। मनी इज अ गेम। रिच खेलता है पैसा कमाने के लिए, और पुअर जो है वो कहता है मैं किसी तरह से जो मुझे सैलरी मिल रही है मैं उसमें सरवाइव करूं। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, जब हमारी इंक्रीमेंट्स लगती हैं तो उससे पहले भी हम अपने सिस्टम को चला रहे थे। आज अगर सपोज मेरी सैलरी 50,000 है और मुझे 5,000 की इंक्रीमेंट लगी है, तो 50,000 में तो मेरा गुजारा पहले भी चल रहा था। तो ये सोच लीजिए कि ये 5,000 आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल में इन्वेस्ट करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, अपने मकान के लिए इन्वेस्ट करना है। बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो हम जब इंक्रीमेंट आती है तो हम ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं या ऐसी चीजों पे स्पेंडिंग करते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं देती हैं। सेकेंड है लीवरेज। हम टाइम हमारे पास जो है वो कम है, हम उसको लीवरेज करना भूल जाते हैं। हम कहते हैं हम तो 8 घंटे के लिए ही काम करेंगे, इससे ज्यादा का हमारे पास टाइम नहीं है। बट उन 8 घंटों में क्या हम अपने 8 घंटों की आउटपुट दे रहे हैं? तो हम उसको बहुत अच्छे से लीवरेज कर पाएंगे। और अगर हम उसको 8 घंटे के टाइम को लीवरेज नहीं कर रहे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। लाइक नेटवर्किंग। नेटवर्किंग हमारी लाइफ में बड़ी जरूरी है। जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंस लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे को सुनने को मिलती हैं। सेम विद द ग्रोथ। ग्रोथ कभी भी किसी के कहने से नहीं आती। ग्रोथ के लिए आपका अपना माइंडसेट होना चाहिए, आप में एक सेल्फ इंप्रूवमेंट, आपके पास चार्ट्स बनने चाहिए कि अगर मुझे ग्रोथ चाहिए तो मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करनी है। आज हमने पैसे लगाए, किसी ने बोल दिया कि भैया इसमें पैसे लगा लो, और 10 दिन के बाद हमने उसमें से पैसे निकाले और लॉस में काट लिया क्योंकि वो चीज नीचे जा रही है। कभी भी कोई भी जो मार्केट है वो स्ट्रेट वे में नहीं चलेगी। स्ट्रेट लाइन तो ईसीजी की भी ये बताती है कि इंसान जो है नहीं। तो ग्रोथ हमेशा कर भी रहेगी, बट उस ग्रोथ के लिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट में या चीजों में होना पड़ेगा। हम रिस्क कितना ले सकते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम मनी के पीछे चेज कर रहे हैं या मनी हमें चेज कर रही है, दैट मैटर्स।
अगर हम वो माइंडसेट बनाएंगे, अटैचिंग मनी मेक्स यू एन ऑनर। संदीप मेरे से कुछ पूछ रहे हैं लीवरेज के लिए। हाँ जी संदीप क्या मैम, उनका पूछना चाह रहे हैं आप क्वेश्चन है। बताएं। कैन वी डू दिस क्वेश्चन मैम आंसर वही है सेशन आफ्टरवर्ड्स? नेक्स्ट, मनी के बारे में हमारे कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें समझनी भी चाहिए और सीखनी भी चाहिए। अगर आज हम पैसे को ढंग से मैनेज नहीं करेंगे या अपनी स्पेंडिंग को मैनेज नहीं करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज नहीं करेंगे, फिर आप चाहे मंथ का 10 लाख का कमा लो या 1 करोड़ कमा लो, अगर आपको मैनेज नहीं करना आया तो आप जितना मर्जी कमा लो वो आपके लिए वर्थ नहीं है। जो अमीर लोग हैं वो अमीर कैसे होते हैं? वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखते हैं। जब वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं तो उनकी जो इनकम है वो इन्वेस्ट होती चली जाती है। वो ओवर स्पेंडिंग में बिलीव नहीं करते हैं। अगर आज किसी रिच पीपल को देखेंगे तो उनके पास 4 टी-शर्ट्स हैं। आप टिम कुक को देख लीजिए, मार्क जगरबर्ग को देख लीजिए, उनके पर्टिकुलर कुछ क्लॉथ्स है, सिर्फ उन्होंने वही पहने हैं, वो चाहे 4 जोड़े ही हैं। बट हम लोग दिखाने के चक्कर में इतने पैसे स्पेंड कर जाते हैं, जबकि उनकी इनकम रोज बढ़ रही है और ऐसा नहीं है कि वो कहीं ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। बट हम लोग अपने इन सब चीजों पे पैसे ज्यादा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, दिखावे के चक्कर में हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को करना भूल जाते हैं। और कोई भी चीज आपको किसी कॉस्ट पे आती है। लाइक हम लोगों में कहा जाता है कि जब भी प्रॉपर्टी बनती है तो वो आसानी से नहीं बनती है। प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको अपनी बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तंग होके प्रॉपर्टी बनती है। तो वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगी। सपोज आज आपने एक लोन ले लिया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, मैं गाड़ी खरीदने की बात नहीं कर रही हूँ। गाड़ी आपकी डेप्रिशिएबल एसेट है जो आपको कभी रिटर्न देकर नहीं जाएगी, वो आपकी लग्जरी है। यहाँ फर्क समझना जरूरी है। बट जब आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म में आपको रेंटल भी देके जाएगा या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर आप उसके लिए ईएमआई ले रहे हो तो वो स्पेंडिंग में नहीं माना जाएगा, वो आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में चीजें देके जाएगी। बट अगर वहीं आप लग्जरी के ऊपर पैसा स्पेंड करते हो तो वो आपकी स्पेंडिंग है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। गाड़ी के लिए अगर आपको लगता है आप ईएमआई नहीं अफोर्ड कर पा रहे, यू कैन अवेल द टैक्सी और यू कैन डू द पूल्स। और आपकी इनकम डिग्रीज आज जितनी मर्जी बड़ी बड़ी हो जाए, अगर आप उनको टेबल पर अपने स्किल से एनहांस कर नहीं कर पाए तो आपकी डिग्रीज बुक्स में ही डिग्रीज रह जाएंगी, वो आपकी स्किल नहीं बनेगी। लाइक आजकल एआई में सिस्टम आ गया है। अगर आज हमारे में से सब लोग टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इनहेरिट नहीं करेंगे तो हमारी जो स्किल्स है, हमारी वो डिग्रीज है, वो सिर्फ पेपर्स के लिए रह जाएंगी। तो हमारे लिए हमारा पैसा जो है वो हमारी स्किल कमाएगी। और हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहे हम मंथली 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, हम ये सोच लें कि अगर आज मेरे पास मेरे खर्चों के लिए में से सब कुछ करने के बाद 100 रुपया बचता है तो मैं 100 रुपए ही इन्वेस्ट करूं, बट मुझे करना है। क्योंकि 100 रुपया छोटी अमाउंट लगता है कि यार 100 रुपए इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो 100 रुपया ही आपको बहुत बड़ी अमाउंट दे जाएगा। और कोई भी आपको कभी पैसे के बारे में सिखा नहीं सकता। दो मैं आज वो लेक्चर देने के लिए बैठी हूँ, बट कोई सिखा नहीं सकता जबकि वो आपकी हैबिट नहीं होगी कि आपको पैसा कैसे सेव करना है। लोग क्या करते हैं, जो पैसा खर्चा करने के बाद बचता है उसको सेव करते हैं। आप ये बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लोग पैसा सेव करते हैं जो खर्चा करने के बाद बचता है। मैं इसको रिवर्स कहती हूँ, पहले आप बचाने के पैसे अलग करिए फिर खर्च करिए। तो आप देखिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे आपकी लेवरेज होगी, कैसे इंक्रीज होगी। हम आजकल ऑनलाइन में जब हम चीजें स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिनमें हम लगातार चलते रहते हैं। अच्छा ठीक है, ये अच्छा लग रहा है इसको खरीद लो, ये अच्छा लग रहा है इसको खरीद लो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ल्यूर करता है और हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जो कभी कभी हमें जरूरत भी नहीं होती है। तो कोई भी चीज खरीदने से पहले एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम अपने आप को जरूर दें। कोई बड़ी चीज खरीदने जा रहे हैं, अपनी फैमिली से डिस्कशन जरूर लें, जरूर करें उनसे फैमिली से डिस्कशन की भैया मुझे ये चीज खरीदने का मन है, इसको खरीदने का मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, छोटी है या बड़ी है, वो मुझे आगे लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट देने वाली है।
सपोज आज एक पावर बैंक की बात करूं, मुझे वो चीज अच्छी लगी, मैंने खरीद ली, बट क्या वो पावर बैंक मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? मेरे एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए अगर मैं ऑफिस में भी प्लग लगाऊंगी तो मेरा चार्ज हो जाएगा, बट अगर मैं पावर बैंक ले रही हूँ तो उसके ऊपर मैं 1800 से 2000 रुपये खर्च कर रही हूँ, मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं? ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, बट हमें कोई भी स्पेंडिंग करने से पहले, जो नॉन असेंशियल परचेज है, उसको करने से पहले आपको सोचना जरूर है और अपने आप को 24 घंटे का टाइम जो है वो जरूर देना है कि आप 24 घंटे लें उस टाइम को, ताकि आपको पता लग जाए कि वो चीज जरूरत है तो कितनी जरूरत है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। और अगर लग रहा है कि यार मैं इसमें सिर्फ ऑनलाइन देख के मैं ल्यूर हुई हूँ तो मुझे इसके नहीं बेनिफिट, तो मुझे नहीं खरीदने हैं। आपके पास, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि अगर कभी किसी की जॉब छूट जाए, कोई बीमार हो जाए, उसके पास कैश रिजर्व कितना आपके पास होना चाहिए इमरजेंसीज के लिए? हमारे पास हमेशा हमारी नेटवर्थ का 1 से 5% कैश जो है जरूर हमारे पास होना चाहिए। या कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो शॉर्ट टर्म के लिए है और हमें लगता है यार ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये म्यूचुअल फंड ऐसा आ रहा है, ये स्टॉक ऐसा आ रहा है जिसमें मैं पैसा डालना चाहता हूँ, बट मैंने तो रिजर्व में कुछ रखा ही नहीं है क्योंकि हमने सारा कुछ या तो खर्च कर दिया या ऐसी जगह पे डाल दिया जहां से मैं पैसा निकाल नहीं सकती। तो आपके पास मिनिमम 5% पैसा ऐसा होना चाहिए कि जब आपको कोई जरूरत आए, कोई इमरजेंसी पड़े, तो आप उन सब चीजों में से वो पैसा निकाल के वहां पर स्पेंड कर सके। कोई ऐसी इमरजेंसी घर में आ गई जहां इमीडिएटली कैश की जरूरत है, आपकी मेडिकल पॉलिसी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वहां आपको कैश की जरूरत है, तो आपके पास किसी और से लेने जाना पड़े, उससे बेटर है कि आप अपने पास उस चीज का जो अरेंजमेंट है जरूर रखें। हम लोग लोन लेते हैं, जो मैंने आपसे पहले भी बात करी, हम लोग लोन लेते हैं किस चीज को लेने के लिए हम लोन ले रहे हैं वो मैटर करता है। जैसे मैंने बोला, use borrowed money to acquire assets that generate income, not liabilities that drain wealth। हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी है जो हमारी वेल्थ को डिग्रेड कर रही है, डीजनरेट कर रही है। बट अगर हम वही जो लोन ले रहे हैं मकान की किस्त देने के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारी एक वेल्थ बन रही है, और एक घर में हम रह रहे हैं, दूसरा घर हम एडिशनल परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारी जो है इनकम, एक्स्ट्रा रेंटल इनकम को जनरेट कर रही है। या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें दिख रहा है कि उस जगह पे हमारी प्रॉपर्टी की कीमत जो है बढ़ेगी, या हमने किसी म्यूचुअल फंड में जैसे हम लोग लीवरेज करते हैं, सपोज मेरा घर है, मैंने उसके ऊपर लोन लिया, लोन तो जैसे आज का रेट चल रहा है सपोज 7 to 8%, मैंने 8% पे लोन उठाया, उसको म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, और वहां से जो मुझे रिटर्न आ रही है वो 12 से 13%, 14% की रिटर्न आ रही है। उसका मैं डिफरेंस देखूँ तो मुझे 5% की इनकम वहां से भी आ रही है। तो जो मैंने लोन लिया वो खर्चे के लिए नहीं लिया, मैंने वो जो लोन लिया वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया। तो नेट नेट में मैं देखूंगी तो मुझे उसका भी फायदा है। तो आप जो लोन ले रहे हैं वो किस चीज को लेने के लिए ले रहे हैं? सपोज आजकल गोल्ड के जैसे रेट्स बढ़े हुए हैं, मैं यहाँ छोटा सा टिप देती हूँ। तो हमने अपने घर में पड़े गोल्ड को, उसका लोन ले लिया, और वो लोन लेके हमने म्यूचुअल फंड्स में या किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया जहां से हमें पता है कि उस लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा जो हम पे कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी हमें रिटर्न देके जाएगी, या वो म्यूचुअल फंड्स हमें रिटर्न देके जाएंगे। तो हमें उस वैसा सा लोन हम अवेल कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर हम वही डेप्रिशिएबल एसेट में लेते हैं जो हमें बाद में कोई वैल्यू नहीं देगी, तो उस तरह की चीजों को करने में हमें बचना चाहिए। कभी भी आपकी लाइफ में सिंगल इनकम नहीं होनी चाहिए। आपके पास इनकम के 2 या 3 सोर्स होने चाहिए। सपोज आपकी सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम के साथ साथ आपके पास आपके बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, या कोई रेंटल इनकम आ रही है, या आपका कोई साइड पे कोई ऐसा काम है जिससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, आप में कोई स्किल ऐसी है जिसमें आप साइड लाइन पे आपकी इनकम आ रही है। तो आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होनी चाहिए कि कभी एक साइड पे सिस्टम अप डाउन हो गया तो वहां से हम उस पे जो है काम कर सके। तो क्योंकि डाइवर्सिफाइंग जो है, डाइवर्सिफाई हम चाहे इन्वेस्टमेंट करें, उसमें भी जरूरी है, हम सारा पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं डाल सकते, हम सारा पैसा प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते। इक्विटी में डालेंगे, मार्केट कब ऊपर नीचे होगी हमें नहीं पता लगेगा। हम प्रॉपर्टी में डालेंगे तो कभी हमें जरूरत के टाइम होगा तो हम उसमें से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। सो और एफडी में डाल दिया तो एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है कि हमारे वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। तो हमें जब भी जो इन्वेस्टमेंट या चीजें करनी है
वो ये देखना है कि क्या वो आने वाले टाइम के इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आपको अपनी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई करके रखना है। हमें ऐसी चीजों पे खर्च करना है जो हमें कमाने में हेल्प करे। हम कहते हैं ना, कई लोग सोशलाइजिंग करने से परहेज करते हैं। सोशलाइजिंग हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जहां जब हम लोगों से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, ये भी इट्स 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 हेल्प इट हेल्प अस टू क्रिएट द वेल्थ। जब हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस सुन के हमें भी आइडियाज आते हैं कि हमें वेल्थ कमाने के लिए किस तरह के तरीकों को आजमाना चाहिए, वो किस तरह के आइडियाज को लेके चल रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में राइज किया। तो नेटवर्किंग, एजुकेशन, हम लोग जब स्पेंडिंग करते हैं तो हम क्लबिंग में जा रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं, बट जब हम अपनी एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारी स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं। तो हमें ऐसी चीजों पे पैसा स्पेंड करना है जो हमें आने वाले टाइम में हमारी स्किल्स को एनहांस करें, हमें इनकम बढ़ाने में हमारी मदद करें। और ऐसे लोगों के साथ हमने अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है जहां से हम उनसे कुछ सीख सकें कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे रेजअप किया, कैसे राइट अपनी चीजों को वो आगे लेके गए, किस तरह के कौन से आइडियाज उन्होंने जनरेट उनके दिमाग में आए कि जब वो एक लेवल पे थे और एक लेवल पे आज अप हो गए हैं। लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आसान नहीं है। और लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस इसमें फर्क नहीं समझते। तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों में फर्क है। पहले मैं लाइफ की बात करूंगी, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों में फर्क है। जब आपको कोई इंश्योरेंस सेल करने आता है तो वो आपको एज इन्वेस्टमेंट बता के सेल करके जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या हम आज अपनी लाइफ के लिए कुछ अर्निंग चाह रहे हैं, या अपने पीछे जब हमें कुछ हो जाए तो हम अपनी फैमिली के लिए कुछ चाह रहे हैं। तो अगर तो हम अपनी फैमिली के लिए कुछ चाह रहे हैं तो हमें लाइफ इंश्योरेंस ऐसी लेनी है जिसमें हमें आरओपी नहीं चाहिए। बट अगर हम, आरओपी मीन्स रिटर्न ऑफ प्रीमियम, अगर हम अपने जीते जी ये चाह रहे हैं, आज हम 60 साल की एज में अगर रिटायर होते हैं तो 60 साल की एज के बाद मुझे कुछ ऐसी इनकम चाहिए जिससे मेरी लाइफ चलती रहे, मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, कुछ हो गया तो मुझे वहां से वो पैसा जो है आता रहे। तो दोनों चीजों में फर्क है। इन्वेस्टमेंट है, आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। लाइफ इंश्योरेंस है टू टू इन्वेस्ट इन दैट मनी विच विल सिक्योर द फ्यूचर ऑफ योर फैमिली। तो अगर आज मुझे कुछ हो जाता है और कल मेरे फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उस चीज को सिक्योर करने के लिए हमारी जितनी टोटल मंथली इनकम आ रही है उसका हमें 100 टाइम्स के अराउंड जो है इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए कि अगर आज हम हैं कल नहीं हो तो हमारी लाइफ का जो स्टेटस, हमारी फैमिली का स्टेटस है, वो एज इट इज चलता रहना चाहिए। किसी के साथ ना ऐसा कुछ हो, बट लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है लेना एक जरूरी चीज है जिसको मुझे लगता है सबको लेना चाहिए। कि इसके बिना, क्योंकि अगर हम वाकई ही अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं और हमारे पीछे से उनका स्टेटस एज इट इज चलता रहे, तो लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। और अगर आप अपनी लाइफ के लिए कुछ चाह रहे हैं तो रिटर्न ऑन प्रीमियम वाली पॉलिसी को चूज करें। अदरवाइज इंश्योरेंस पॉलिसीज में नॉर्मल में 4 से 5% से ऊपर का रिटर्न नहीं आता। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो गो इनटू द मार्केट और सम बॉन्ड्स फंड्स। बट अगर आपने लाइफ की सेफ्टी के लिए जाना है तो गो फॉर द टर्म प्लान। और या बच्चों के लिए कुछ प्लान करना है तो कुछ अच्छी पॉलिसीज हैं, आप उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में रहिए। बट यू विल हैव टू डिफाइन कि आप जब इंश्योरेंस करा रहे हैं, जब आपके पास कोई इंश्योरेंस बेचने वाला आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका जरूर होना चाहिए कि ये मुझे ये इंश्योरेंस करानी क्यों है। क्या मैं सिर्फ किसी के कहने से करा रही हूँ या वाकई मुझे इसकी जरूरत है, और क्यों चाहिए, मेरा इसका गोल क्या है। जब हमें गोल नहीं पता होता कि हम इंश्योरेंस ले क्यों रहे हैं, तो लोग हमें कुछ भी आकर बेच जाते हैं। और बाद में जब हमें टाइम रहने पे पता लगता है तो हमें समझ में आता है कि ये इंश्योरेंस में मैंने पैसे तो लगा दिए बट मुझे उतनी रिटर्न ही नहीं मिली और वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाया।
आज जैसे बड़ी सारी इंश्योरेंस की स्कीम्स आ रही है कि जी आप 1 लाख रुपया 15 साल के लिए लगाओ, उसके बाद 15 साल से लेकर आपको 50 साल तक लाख रुपया मिलेगा आपको हर साल, और ये एक लमसम अमाउंट बनेगा। कभी आप रिटर्न कैलकुलेट करके देखिएगा कि उसमें आपको एवरेज रिटर्न आ क्या रही है, आपको वो रिटर्न जो है 5 से 6% से ऊपर रिटर्न आएगी ही नहीं। तो डिसाइड आपको आपको इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक्चुअली में चाहिए किसके लिए, आपका एम क्या है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को फर्क करके चलिएगा। और टर्म इंश्योरेंस जो है सबके पास जरूर होनी चाहिए, जिसमें आपका एक नॉमिनल अमाउंट है। आजकल जो लोग हैं वो 100 ईयर्स वाली नहीं देते हैं, बट मैं ये कहूंगी कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस के लिए जाएं 70 या 75 वाली इंश्योरेंस पे नहीं जाएं। हमेशा अपने इंश्योरर को ये बोलिए कि मुझे 100 ईयर्स वाली इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि अगर आपने 80-85 वाली लिया और 80 ईयर वन डे हो गया तो आपकी फैमिली को पीछे से कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने होल लाइफ ली है तो जो लाइफ का जो आजकल एवरेज एज जो चल रही है वो 60-65 या 70-75 लेके चले तो आपकी फैमिली को आपके बाद कुछ मिल जाएगा। बट अगर आपने ऐसे लिया कि 60-65 70-75 लेके चला तो आपकी फैमिली को प्योर टर्म में पीछे से कुछ नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस वाला आपको कुछ भी कह के बेच जाएगा। जब भी लाइफ इंश्योरेंस ले इस चीज का बहुत ध्यान रखें, और खासकर टर्म इंश्योरेंस में। सेकेंड है हमारी मेडिकल इंश्योरेंस। हम कहते हैं हमारी कंपनी ने हमें कवर करा दिया है और इट्स इनफ, जो हमारे को कुछ होगा तो हमें इसमें से मिल जाएगा। मेरा यहाँ पे व्यू पॉइंट डिफरेंट है। आज आपकी एज है, आप 58-60 तक किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उसमें कवरेज है। उसके बाद क्या, उसके बाद आपके इंश्योरेंस के खर्चों को कौन कवर करेगा, और क्या इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं आपको उसका कवर देंगी। जैसे जैसे आपकी एज होती चली जाएगी आपकी इंश्योरेंस कवरेज में मुश्किल आती चली जाएगी, क्योंकि विद टाइम बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और वो इंश्योरेंस के कवर उतने महंगे होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके पास कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी है भी, तो भी जितनी जल्दी छोटी एज में आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस शुरू कर लेंगे और हर साल इस मेडिकल इंश्योरेंस के अमाउंट को बढ़ाते चले जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कंपनी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या दे रही है। ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है कि कभी कोई वर्स्ट टाइम आया तो उस टाइम पे मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास इतनी हो कि आप उस चीज को मेडिकल के एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो है आपको जरूर लेनी चाहिए, कंपनी के अलावा भी। कंपनी जो मर्जी इंश्योरेंस दे रही है, बट अगर आपने राइट टाइम पे राइट एज पे एक अच्छे अमाउंट की इंश्योरेंस आपने ले ली और तो आपकी घर के सारे जो मेडिकल के खर्चे हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और ये जो पॉलिसी ले वो फ्लोटर पॉलिसी ले, फिक्स्ड पॉलिसी जो है मेडिकल वाली नहीं ले कि हर जितने आपके फैमिली मेंबर है उसका उन्होंने 5-5 लाख रुपए इंश्योरेंस दे दिया, नहीं। फ्लोटर पॉलिसी, जिसको भी किसी को कुछ हो तो वो पैसा उसमें फ्लोट होते चला जाए। इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 5 लाख के लिए और टॉपअप आपने 50 लाख का ले लिया या 1 करोड़ का ले लिया, उसमें जो आपका प्रीमियम है वो आपको बहुत कम पड़ता है और आपकी जो पॉलिसी की अमाउंट है वो आपको ह्यूज मिल जाती है। तो मैंने इसमें लाइफ को और मेडिकल को दो हिस्सों में बांटा है। लाइफ आपको आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या इंश्योरेंस लेनी है, अपने लिए लेनी है, अपनी लाइफ के लिए लेनी है या अपने बाद वालों के लिए लेनी है। मेडिकल इंश्योरेंस टू कवर योर मेडिकल एक्सपेंसेस बियॉन्ड द कंपनी एंड आफ्टर द एज ऑफ योर रिटायरमेंट। तो अगर आज लेके चलेंगे तो आपकी आने वाले टाइम तक आपकी वो मेडिकल इंश्योरेंस लगातार बढ़ती चली जाएगी। जब भी आप इन्वेस्ट करें, चाहे वो रियल एस्टेट में करें, चाहे स्टॉक्स में करें, चाहे किसी में भी करें, हमेशा अपना एक लॉन्ग टर्म लेके चलिए। जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है कि आपको बेनिफिट आए। आपने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो कंपनी वाले ले गए और आपके हाथ में कुछ नहीं आता। जब भी आप इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, एंड लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, आपको रियल एस्टेट में करते हैं, मैं बड़ा लोअर साइड पे बोल रही हूँ, 12% की रिटर्न आपकी कहीं नहीं जाएगी अगर आप लॉन्ग टर्म में लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके टैक्सेस के ऊपर आपका बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। लाइक जैसे अगर आप 30% की ब्रैकेट में आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म आपका 12.5% पे है, एक तो टैक्सेशन आपका बहुत कम है। दूसरा, आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट
मैंने एक पर्पस के लिए रखी है। जब हम एक पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस इन्वेस्टमेंट को मैं छेड़ूंगी ही नहीं। आज मुझे मेरे बच्चे को एक लॉन्ग टर्म में 18 ईयर के बाद एक एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, मुझे उसके लिए कितने फंड भेजने हैं, कितने फंड उसमें चाहिए होंगे, उन फंड की डिसाइड। सपोज आज किसी यूनिवर्सिटी की फीस है 1 करोड़ रुपया है, अगर उसको बाहर मुझे कहीं भेजना है, बट उसमें मुझे 1 करोड़ रुपया तो मेरी आज की कॉस्ट है, उसमें मुझे उतने सालों का इन्फ्लेशन ऐड करना है। उस टाइम पे उस 1 करोड़ के लिए मुझे कितना इन्फ्लेशन ऐड करके, अगर मैं 6% की इन्फ्लेशन ऐड करती हूँ, तो मुझे 18 साल के बाद क्या मुझे वो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हो वो उतनी वैल्यू देकर जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी उस टाइम पे वैल्यूएशन क्या होगी। तो हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। लोग क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप न्यू रिजीम में चले जाइए तो आपको इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट बिलीव मी, अगर आप पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी टैक्स फ्री इंटरेस्ट है आज भी। तो जब आप टैक्स फ्री में जाते हैं तो आपको वहां पे वो एक फिक्स मिल रहा है कि आपका 8% के राउंड पीपीएफ में मिल रहा है। कंपाउंडेड होगा तो कितना आप देखिए बढ़ जाएगा, प्लस जो आपको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है वो टैक्स फ्री आ रही है। 30% उसमें और ऐड कर लीजिए। सो आपको सारा पैसा मार्केट में भी नहीं डालना, कुछ पैसा ऐसे सिस्टम में डालना है जहां से पता है कि ये फिक्स्ड और सिक्योर इनकम है और टैक्स फ्री इनकम है। कुछ पैसा ऐसे में डालना है जहां आप इमीडिएट लिक्विड फंड्स में डाल सके, जिसकी मैंने बात करी 1 to 5%। मैं नहीं कहूंगी कि आप उसको एफडी में रखें या कुछ पैसा एफडी में रखें, कुछ पैसा लिक्विड फंड में रखें। लिक्विड फंड में भी बहुत अच्छी रिटर्न है और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है वो आपके नॉर्मल इनकम टैक्स से कम लगता है। इसी तरह से रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में 3 साल के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं उसका प्रॉफिट लेते हैं और उसको आगे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको जो है उसमें एक प्रॉपर बेनिफिट आ जाता है। तो आपको क्विक मनी की तरफ नहीं जाना। जब आप क्विक मनी की तरफ जाते हैं तो 90% केसेस में आपको लॉस होता है। आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए। सेबी जो है आजकल एफ एंड को लगातार बैन करती चली जा रही है। क्यों बैन करती चली जा रही है? क्योंकि सबने इन्वेस्टमेंट देखा कि ठीक है जी फ्यूचर डेरिवेटिव्स में प्रॉफिट आ रहा है, बट 90% लोगों ने इसमें लॉस किया है। क्योंकि फ्यूचर डेरिवेटिव्स में बहुत कम को प्रॉफिट आता है, वो भी जो लॉन्ग टर्म उसमें चलते चले जाते हैं उनको प्रॉफिट आता है। शॉर्ट टर्म में कभी भी मार्केट में आपको प्रॉफिट आएगा ही नहीं। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म करें। आप सिप लगाएं, चाहे वो मंथ की 100 रुपए की लगाएं या मंथ की 1000 रुपए की लगाएं, बट आप जरूर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी आने वाली फैमिली को वो दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए मेकिंग मनी इज अ स्किल। लाइक जैसे अभी मैं बोल रही हूँ किस, आप ये मत सोचिए कि आपकी सैलरी 5,000 है, 10,000 है, 50,000 है। बट अगर इन्वेस्टमेंट की आदत आपको आज से है तो वो आपका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना पैसा बनेगा आप सोच ही नहीं सकते। इंक्रीमेंट जब आता है तो हम डेप्रिशिएबल एसेट की तरफ ना जाए, वो इंक्रीमेंट सोच लें हमारा नहीं है। वो पैसा हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें मिल रहा है, इन्वेस्ट करें उसमें। और ये चीजें ऐसे नहीं आती, ये चीजें आती हैं डिसिप्लिन से। अगर आपकी लाइफ में आप डिसिप्लिन नहीं है पैसे को इन्वेस्ट करने का, तो आप जितना मर्जी कमा लें आपके पास कभी भी कुछ नहीं होगा। मनी को जो मल्टीप्लाई करना है वो एक आर्ट है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट लोगों के कहने से नहीं, लोगों के सिखाने से नहीं। आज मैं आपको बोल के जाऊंगी कि आप इस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, ये वाली लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, नहीं। मेरे बोलने या मेरे कहने से नहीं लेनी। पहले आप अपनी रिसर्च कीजिए। पैसा तो आप ही का है, एडवाइस जरूर मेरी होगी, पैसा तो आप ही का है। कल को क्या वो आपकी नीड्स आपके सिस्टम को पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या आप मार्केट को किस नजरिए से देख रहे हैं, या सिर्फ हमें किसी ने कह दिया, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कह दिया इसमें इन्वेस्ट कर लो, इसमें रिटर्न आ रही है, वो रिटर्न दिखा रहा है, उसके साथ जो नीचे एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है वो हम कभी नहीं पढ़ते हैं कि जो हमारे पिछले 5 साल के रिटर्न है ये फ्यूचर की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो रिटर्न आएगी। सो हमें जब नॉलेज होगी और हम खुद उस चीज को स्टडी करेंगे, रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे सिस्टम में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें किस चीज में इन्वेस्ट करना है। यस, शुरू में आप गाइडेंस ले सकते हैं, बट क्योंकि पैसा आपका है और कैसे आपने इन्वेस्ट करके चलना है, आपको उस पैसे से चाहिए क्या, कितनी चर्निंग करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे उस सिस्टम में चलेंगे, कैसे उस सिस्टम को इन्वेस्ट करेंगे। लाइक जैसे अभी मैंने इंश्योरेंस के बारे में आपको बताया कि इंश्योरेंस आपको क्यों चाहिए। लोग बेच जाते हैं और आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंश्योरेंसेस ऐसी ही खरीदी होंगी कि कोई आया था वो हमें बता गया था और मुझे
इतने साल के बाद इतना पैसा मिल जाए, इतना पैसा ऐसे मिलेगा। बट जब, क्या आप में से कभी किसी ने उस रिटर्न को कैलकुलेट किया कि वो जो इंश्योरेंस हमें बेच के गया है उसके ऊपर कैसे चलेगा? तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अगर आपको अचीव करना है, अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, इन 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मास्टरी करनी पड़ेगी। मास्टरी किसी के सिखाने से नहीं आएगी। अगर कुछ भी कोई आपको बता रहा है, उसको बोलिए कि मुझे 2 दिन का टाइम दो, मुझे सोच लेने दो, मुझे अपनी रिसर्च कर लेने दो, उसके बाद मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। सो ये मेरे आज के टिप्स थे। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं बताइए, मैं कोशिश करूंगी उनके आंसर्स दे पाऊँ। हाँ, नीचे डाउन में चैट में। थैंक यू सो मच मैम। हम लोगों के पास अभी क्वेश्चंस है कुछ, तो डू वी वांट टू टेक द क्वेश्चंस नाउ या फिर हम लोग थोड़ी देर बाद करें? नहीं नहीं, आप क्वेश्चंस। परफेक्ट। सो मैम, सबसे पहले है संदीप जी का क्वेश्चन कि उनको ये लेवरेज समझना है कि लेवरेज एक्चुअली होती क्या है। लेवरेज है टाइम को, टाइम जो है हमारे पास वो लिमिटेड है। कई बार हम कहते हैं ना, ये बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ा, इसने तो 2 घंटे में 8 घंटे की पढ़ाई की, और किसी ने 8 घंटे में भी 8 घंटे का काम पूरा नहीं किया। सो टाइम हमारे पास लिमिटेड है। मतलब हमारे पास, जब हमने मनी को इन्वेस्ट करना है, उसका टाइम हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम आज शुरू कर देंगे तो उसको हम बेटर लेवरेज कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो उतना बेटर लेवरेज नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो उसको बेटर लेवरेज कर पाएंगे। 15 to 16% की अगर हम रिटर्न लेते भी हैं तो वो हमारे इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा और हमारे सिस्टम को भी मैनेज करेगा। थैंक यू, दैट वाज वेल सेड मैम। अब हमारा अगेन एक दूसरा क्वेश्चन है, इट इज मोर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जो क्वेश्चन है वहां शिवम ने ये पूछा है कि मार्केट में तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स अवेलेबल हैं, टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स अवेलेबल हैं, तो क्या ये गुड ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान है मार्केट में, शिवम किस So, बात में? मैं मैम, माय क्वेश्चन इज एक्चुअली कि आजकल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम जो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स है वो अवेलेबल है, लाइक दे प्रोवाइड दैट कि एट द सर्टेन एज, इफ यू रीच द सर्टेन एज एंड यू आर लाइक ऑल अलाइव एंड ऑल ओके, तो जितना भी आपने पे करा होगा उसका कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न यू विल गेट बैक। मतलब अगर आपने वो चीज यूज नहीं करी, आपका यूज नहीं आ सका वो इंश्योरेंस। आरओपी, रिटर्न ऑन प्रीमियम आपको मिल जाएगा। आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, आपने सपोज हर साल 1 लाख रुपया दिया, और आपको एक सर्टेन एज तक की आपको दे दिया, उस टाइम तक आपको कुछ नहीं हुआ, तो राइट, आपको आपका वो रिटर्न ऑन प्रीमियम आपको देंगे कुछ उतने अमाउंट जो आपने दिया प्लस 5 to 6% का देंगे। बट जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे शिवम, तो राइट, आप देखेंगे कि उसमें आपको कोई बेनिफिट आ ही नहीं रहा। जब भी टर्म इंश्योरेंस ले, प्योर टर्म इंश्योरेंस लें जिसमें किसी तरह का रिटर्न ऐड नहीं हो, और 100 years वाला टर्म इंश्योरेंस ले, आपको किसी भी एज में कुछ भी हो तो आपकी फैमिली उसमें सिक्योर हो। आरओपी में तो आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। जब आप प्योर टर्म ले रहे हैं, कंपनीज प्योर टर्म को क्यों अवॉइड कर रही हैं? क्योंकि उसमें उनके ऊपर लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बहुत आ जाती है। सपोज आज 1 करोड़ का मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया, मुझे उसका देना क्या है 37,000 पर ईयर, और अगर मैं 50 साल तक भी देती हूँ, नेक्स्ट 50 ईयर तक भी देती हूँ, आज अगर मेरी एज 50 है, मैं नेक्स्ट 50 ईयर तक भी देती हूँ, तो मैंने सिर्फ 15 to 16 लाख रुपीज दिया। और जब मेरी राइट, फैमिली को मिलेगा वो जाके 1 करोड़ रुपया मिलेगा। बट अगर वो करेक्ट, आरओपी में है, आरओपी में वो आपसे लिमिटेड टाइम में आज ही सारा पैसा ले लेगा, जबकि जब वो पैसा वो आप मार्केट में डालोगे तो उसके रिटर्न आप ज्यादा कमाओगे। सो राइट, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों में फर्क समझना जरूरी है। आपको इंश्योरेंस किसके लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए या अपनी फैमिली के लिए चाहिए? सो राइट, टर्म इंश्योरेंस हमेशा फॉर दी होल लाइफ उनसे बात करो। आरओपी पे हमने बात नहीं करनी है। आरओपी तब लेना है अगर उसमें वो आपका कुछ अमाउंट प्रीमियम में ले रहा है और बाकी का अमाउंट वो मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज में डाल रहा है, देन इट ओके, इज अ बेनिफिशियल प्रोपोजिशन। बट अगर वो 5-6% के रिटर्न ले रहा है तो इट्स नॉट अ बेनिफिशियल प्रोपोजिशन। सो राइट, हम आपको शेयर करेंगे क्लैन पे, मैंने मनीष से आईटी टीम पे कुछ रिटर्न्स की कैलकुलेशन के लिए
कुछ फॉर्मूलाज बनवाए हैं, वो भी मैं टीम के साथ, आप लोगों के साथ, क्लैन पे हम लोग शेयर करेंगे, जिसमें जब आपको कोई आके बोलता है कि इसमें ये रिटर्न आएगी, तो आप ईयरली क्या डाल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलेगा। आप बीच में विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि आप हर साल 1 लाख रुपया विड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपका बेस बताएगा कि आपको कोई कुछ बोल कर जा रहा है, आप उसके ट्रैप में ना फंसे, आप खुद कैलकुलेट कर पाए। तो हमने 7 to 8 ऐसे फॉर्मूलाज मनीष के साथ बनाए हैं, जो आपको क्लैन पे हम लोग शेयर करेंगे। उसमें आपको ये चीजें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। जब हम उसमें वो भी हमने डाला है कि अगर आप होम लोन की ईएमआई पहले पे करते हैं, क्योंकि शुरू में जो होम लोन है, अगर उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा होती है, प्रिंसिपल कम कम होता है, तो अगर आप शुरू में प्रिंसिपल 10% हर साल पे करते जाएंगे, तो आप 20 साल के लोन को 10% पे ले आएंगे, 10 साल के लोन। तो मनीष आपके साथ क्लैन पे वो शेयर कर। Right. Thank you so much. I No, hope no, I have thank you so much. Yes, ma'am, definitely. It would be a great help, and we will waiting कि clan में ये सब formulas जल्दी से available हो. That this is really a very benefit to everyone, I think, in the group. ये कल ही हो जाएगा। Right. Thank you. Well said, Shivam. Well said. Thank you so much. And thank you, ma'am, for making that formula available. तो हम लोगों का तो एक और क्वेश्चन आया है बालेंद्र से, जो कि ये जानना चाहते हैं कि अब आपकी अर्निंग का कितना पर टोटल अर्निंग का कितना परसेंटेज जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं इसमें मान के चलूंगी कि मिनिमम 10% तो आप साइड में रख दीजिए, प्लस जो आपकी इंक्रीमेंट आ रही है उसको साइड पे कर दीजिए, वो आपकी है ही नहीं। 10% तो मिनिमम आपको रखना ही रखना है। धीरे धीरे इसको स्टेप अप करके इंक्रीज करते चले जाएंगे साल में। जब आपने इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट पहले निकाल दी, तो आपके पास स्पेंडिंग के लिए पैसे ज्यादा बचेंगे ही नहीं, आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करोगे जो आपके पास पैसा बचा है। तो मिनिमम 10% प्लस आपका इंक्रीमेंट, एंड फिर इसको हर साल हम स्टेप अप करते चलेंगे। थैंक यू मैम। अब सार्थक ने एक क्वेश्चन पूछा है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई फील कि और जानना भी जरूरी है कि रिटायरमेंट के लिए व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्लान फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम एन अर्ली एज। बेस्ट नेक्स्ट भारती, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? श्योर। क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट के लिए अर्ली एज से, आई मीन व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्लान फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम एन अर्ली एज। Investment, simply SIP. Do your SIP from a minimum amount, then step up your SIP in every year, every 6 months, depending upon your earning. एज इज नो मैटर कि आप किस एज में हैं, बट जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लेंगे, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, हार्डली मैटर। आप अपनी, जब से आप अर्निंग करना शुरू कर रहे हैं, तब से आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते रहेंगे। जितनी जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, अपने सिप्स में जाएंगे, पीपीएफ में डालेंगे, उतनी जल्दी आप अपने रिटायरमेंट को इजी करते जाएंगे। थैंक यू मैम। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन एमएफ, आरडी, एफडी और अदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो हाँ, राजन का सवाल है कि बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स है, आरडी है, फिक्स डिपॉजिट है, या कोई और अदर ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और जो बेस्ट रिटर्न्स देंगे। एज आई एम अ मार्केट प्लेयर, तो मैं हमेशा म्यूचुअल फंड्स में लेके ज्यादा चलती हूँ, क्योंकि फिक्स एसेस एफडी के ऊपर या आरडी के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल है। तो अगर आपको 8% में मिल रहा है, तो 8% के ऊपर आपकी इनकम के हिसाब से उतनी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज बेनिफिशियल, बट कौन से म्यूचुअल फंड है उसकी सजेशन मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ, वो आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। या अगर आप कोई चूज कर रहे हैं, तो यस आई कैन हेल्प यू कि ये वाले लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। थैंक यू मैम, दैट वाज अ वेरी गुड एडवाइस। नेक्स्ट रमेश का क्वेश्चन है, जैसे कि अभी गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत हाई हो रहे हैं और हाइक अप हो रहे हैं, तो अभी उसका क्वेश्चन है कि डू वी नीड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और सिल्वर नाउ लॉन्ग टर्म, आने वाले 2 साल के लिए। हमें किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना है कि मार्केट में वो चीज बढ़ क्यों रही है, क्या ऐसी चीज है जो उसको बढ़ा रही है। सिल्वर के लिए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में जितने भी हमारे कनेक्शन लगते हैं या चिप्स बनती हैं, उनमें सिल्वर का यूजेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इंडिया में सिल्वर की प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है। तो सिल्वर क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज में जब आ रही है, लाइक हम ये नहीं कह सकते कि सिल्वर यूटेंसिल्स या सिल्वर ज्वेलरी में चीजें जा रही हैं, नहीं।
सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, इसलिए इसकी प्राइसिंग जो है बढ़ती चली जा रही है। आप अगले 2 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगी, मार्केट में 2 साल की इन्वेस्टमेंट कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। लेट इट बी लॉन्ग टर्म। गोल्ड अगर हम पुराने टाइम से देखें, आज से 25 साल पहले देखें, तो ये 4200 के राउंड था। आज 4200 से ये अराउंड 1 लाख हो गया। तो आप रिटर्न देख लीजिए, अगर जिसने 4200 पे लेके 5000 पे बेच दिया कि इसके बाद गोल्ड बढ़ेगा, तो वो कहाँ होगा। तो गोल्ड जो है और सिल्वर, जो ये जो दो एसेट क्लास है, क्योंकि गोल्ड को बैंक्स रिजर्व में रखते हैं कि जब जब कंट्री के ऊपर कुछ भी हो तो गोल्ड के जो रिजर्व हैं वो हमारी कंट्री को चलाने में फायदा करते हैं। वार का जब टाइम आता है तब ये इन चीजों में फायदा करते हैं। एंड सिल्वर इज ऑफ कोर्स फॉर द इंडस्ट्रियल यूजेज। तो ये जो दो एसेट क्लास है, इनमें ग्रोथ यस पिछले काफी टाइम से बहुत अच्छी आ रही है। सिल्वर में अभी ग्रोथ आने के चांसेस हैं, बट प्लीज डोंट गो फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। थैंक यू मैम। सो अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, सॉरी गिव मी वन मोमेंट मैम। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदीप जी ये जानना चाहते हैं कि पीपीएफ बेस्ट है या म्यूचुअल फंड बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड गवर्नमेंट ने जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इंक्रीज कर दिया है अप टू 20% ऑन शेयर मार्केट अर्निंग। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है एंड बेस्ट वे क्या है? पीपीएफ में पहली बात तो हमें पीपीएफ और म्यूचुअल फंड का डिफरेंस समझना जरूरी है। पीपीएफ में आप एक फिक्स अमाउंट डाल सकते हैं, उससे ऊपर का अमाउंट नहीं डाल सकते, विच इज 1.5 लाख पर पर्सन पर बैंक। एंड उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जो गवर्नमेंट के डिसाइडेड नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से मिलेगा। एंड उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लॉक इन है 15 साल का। यस, बीच में 5 साल के बाद आप कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं, बट उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एंड पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड 3 साल में आपको अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, तो उसमें लॉक इन नहीं है। एंड टैक्सेबिलिटी गवर्नमेंट के हिसाब से लगेगी। यस, उसमें टैक्सेबिलिटी है, बट वो गवर्नमेंट के हिसाब से लगेगी। तो ये आपको अपनी नीड देखनी है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। हाँ, पीपीएफ में आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, प्लस जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट जो है, इंटरेस्ट क्योंकि टैक्स फ्री है तो टैक्स बेनिफिट लेना है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको कभी बीच में पैसे की जरूरत है कुछ है, तो म्यूचुअल फंड से आप आराम से निकाल। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था इनका? सेकंड क्वेश्चन ये था मैम इनका कि गवर्नमेंट ने जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी अप टू 20% इंक्रीज कर दिया है शेयर मार्केट अर्निंग पे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, अर्निंग्स पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे ऐसा कुछ इंक्रीज नहीं किया है। जो लास्ट ईयर के रेट्स थे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे वही है। यस, रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे उन्होंने इंडेक्सेशन हटाई है और कैपिटल गेन जो टैक्स है वो 12.5% का किया है। बट उसमें भी उन्होंने दोनों तरफ का दे दिया है कि आइदर यू कैन यूज इंडेक्सेशन और आइदर यू कैन यूज स्टेट टैक्स ऑफ 12.5%। इट्स योर ऑप्शन। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर में है। हमारे एक एम्प्लॉय ये जानना चाहते हैं कि आपके थॉट्स क्या है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, लाइक जैसे भी पीपीएफ और म्यूचुअल फंड की बात हो रही थी, आपके पास क्या और कितना अमाउंट है आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में डालने के लिए, कौन से एरिया में आप डालने जा रहे हैं, वहां पे ग्रोथ का क्या सीन है, क्या आप, और सबसे बड़ी बात, जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं क्या आप उस प्रॉपर्टी को खुद मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या आपने किसी के कहने से खरीद ली और उसके बाद कब्जा किसी और का हो, क्योंकि आप तो वहां रह ही नहीं रहे ना, आप वहां आप जा पा रहे हैं। यस, रियल एस्टेट में बूम आएगा और अभी चल भी रहा है। रीजन बीइंग कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जगह की स्कैर्सिटी होगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो रियल एस्टेट में बूम आना ही। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि बेस्ट कैप फंड क्या है म्यूचुअल फंड लार्ज स्मॉल और मिड कैप में, अगर वो डिसाइड करना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में 10 से 15 साल तक के लिए इन्वेस्ट करें तो। तो मैं आपके लिए कहूंगी, जो स्मॉल कैप है वो मिड कैप बनता है और मिड कैप है वो लार्ज कैप बनता है। तो अगर किसी का इतना लॉन्ग टर्म होराइजन है तो अच्छे स्मॉल कैप में आप वीकली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अच्छे स्मॉल कैप में आप म्यूचुअली वीकली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, छोटी अमाउंट से करिए। और अगर आपको बीच में आपको लगता है कि आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और आप अपनी मनी को सेफ रखना चाहते हैं तो लार्ज कैप में। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर अबाउट ट्रेड मार्केट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे एम्प्लॉय जानना चाहते हैं, लर्नर जानना चाहते हैं कि क्या ये वर्थ इट है, क्या उन्हें
ट्रेड मार्केट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड क्या वो इमरजेंसी पे जब उन्हें पैसे वो चाहिए है उन अमाउंट की जरूरत, तो क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं? इमरजेंसी में स्टॉक मार्केट से पैसा सिंगल डे के सिस्टम में हम विड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो डोंट प्ले विद द स्टॉक मार्केट, इट्स अ फायर। तो उससे बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके पीछे फंड मैनेजर्स हैं जो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। यस, लिक्विड फंड में एक दिन के ड्यूरेशन में पैसा आ जाता है, और जो आप वैसे पैसा लगाते हैं वो 3 दिन की उसमें। बट स्टॉक मार्केट में अगर आपको नॉलेज नहीं है, सिर्फ कहने भर से, किसी के कहने से आप पैसा मत डालिए, इट्स इट्स अ फायर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर सम कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो लोग अपने अर्ली करियर में बना करते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये ऐसे कौन से कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं और इसे कैसे अवॉइड कर Not सकते at the हैं? moment. Once we need it, I will take it. तो कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स में, जैसे भी मैं कह रही थी कि इंस्टा पे, फेसबुक पे बड़े सारे प्लेटफॉर्म ऐसे दिखाए जा रहे हैं, गेमिंग एप्स दिखाए जा रहे हैं, या फॉरेक्स की इन्वेस्टमेंट्स दिखाई जा रही हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि इसको इसमें इन्वेस्ट कर लो इतनी रिटर्न आ जाएगी, इसमें इन्वेस्ट कर लो इतनी आ जाएगी। तो हम लोग जो यंग हैं, अच्छा ठीक है 10,000 डाल देते हैं, 20,000 डाल देते हैं, 50,000 डाल देते हैं, बट उनके लिए वो 10,000, 20,000, 50,000 ही हार्ड अर्न मनी है। तो इस तरह के ल्यूक्रेटिव प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए। जो फिक्स स्टेबल गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड्स है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो सिस्टम है, सिर्फ उसी में काम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडाउमेंट प्लान को लेकर के। सो एंडाउमेंट प्लान का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड पॉलिसी होल्डर को क्या इसमें से प्रॉफिट्स मिलते हैं? एंडोमेंट प्लान जो है, हर कंपनी का अपना अलग अलग पॉलिसी का जो है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अपना अलग अलग है। फिर वही बात है कि आपने वो एंडोमेंट प्लान जो है लिया किस लिए है, आपकी नीड क्या है, दैट डिपेंड्स। एंडोमेंट जो प्लान है वो फिर लॉन्ग टर्म का है। आप अगर आपने अपनी फैमिली के लिए लिया है तो इट्स बेनिफिशियल, अदरवाइज नहीं। थैंक यू मैम। एंड इससे पॉलिसी होल्डर को प्रॉफिट्स मिलते हैं एंडाउमेंट प्लान में इन्वेस्ट डिपेंड्स करने से? फॉर डिपेंड्स फॉर पॉलिसी कंपनी। ऑलराइट, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर का। वो जानना चाहते हैं कि कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है जहां पर लमसम अमाउंट कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जो इन्वेस्टेड मनी है वो इसे ग्रो कर सकता है? देखो, प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, लाइक HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, कोटक है, जीरोधा है, पेटीएम, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बट आप कौन सी सिक्योरिटीज में जाना चाह रहे हैं, किस तरह की सिक्योरिटीज में जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जाना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में जाना चाह रहे हैं, या आप अगर PPF में जाना चाह रहे हैं तो वो बैंक के थ्रू आप जाएंगे। अगर आप EPF में जाना चाह रहे हैं, EPF में वॉलंटरी PF है जो आपकी सैलरी में से कटता है, तो वो आप अपने ऑफिस के थ्रू जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में जाना चाह रहे हैं तो आपका ऑनलाइन जो HDFC बैंक्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाह रहे हैं। ग्रोथ की बात, ऐसा कहीं पे भी कोई फिक्स रिटर्न नहीं है कि आपको रिटर्न लिख कर दी जाएगी। अगर कोई ये कह रहा है कि ये 12% या 13% की या 15% की रिटर्न आएगी, उसको बोलो आप रिटर्न दे दो, क्या सेबी के ये नॉर्म्स हैं कि ये फिक्स रिटर्न हमें मिले? थैंक यू मैम। Ask for your money to asking the question. थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है संदीप की तरफ से। वो ये जानना चाहते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स जो है 12 to 15% इनकम ऑफर कर रहे हैं बॉन्ड फंड्स पे, क्या ये रिलायबल है? बॉन्ड फंड पे ऐसे कौन सी कंपनीज हैं जो 15% पे मार्केट को लेवरेज करना चाह रही है? इसका मतलब उनके पास कैश क्रंच है, जो मार्केट से 15% पे भी पैसा उठाने को तैयार है। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या वो 15% वापस आएगा भी कि नहीं, कि आपकी अपनी मनी भी जाएगी। सो ल्यूर मत होइए, जो है वो भी चला जाएगा। सिर्फ उस तरह में इन्वेस्ट कीजिए जो एक्चुअली कंप्लाइड। और जब भी आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें दिया होता है कि कौन सी कंपनी में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको भी जरूर स्टडी करें।
थैंक यू मैम। सो आपके अकॉर्डिंग टू योर मतलब आपका सजेशन क्या है कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है या इन्वेस्टमेंट की जा भारती में सकती है? प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। ग्रोथ ऐसे नहीं मिलती आपको। सारा पैसा मार्केट में नहीं डालना, कुछ पैसा आपको फिक्स में डालना है, कुछ पैसा आपको इक्विटी में डालना है, कुछ पैसा आपको गोल्ड में डालना है। सो वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी इनकम क्या है उसके हिसाब से डिसाइड। हर एक के लिए सेम रूल अप्लाई नहीं होगा। इफ एनीबडी नीड्स हेल्प, आई एम हियर इन एचओ, टेक द टाइम एंड आई कैन। Uh, Ma'am, Gaurav this side. हाँ जी गौरव। Ma'am, there was a slide वो 1 to 5% one has to keep for safety as a safety amount या of the net worth. तो net worth calculation मतलब कोई एक पर्सन कैसे कर सकता है अपनी? नेटवर्क मींस कि आपके पास टोटल एसेट्स बेस क्या है आपका। एसेट बेस मींस कि आपके पास गोल्ड में क्या है, आपके पास सिल्वर में क्या है, आपके पास आपकी जो फिक्स एसेट है वो क्या है, उसका 1 to 5% वो आपके पास लिक्विड में होना चाहिए इमरजेंसीज के लिए। इसके लिए ये एक जैसे मैंने एक फॉर्मूला दिया 1 to 5%। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली कंडीशन कि ठीक है, अगर आज आपने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा, बट आपको लगता है कि अगर मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरा क्रेडिट कार्ड ही 25 लाख से स्वाइप हो जाएगा, तो हमारा उससे भी काम चल सकता है, बट वो किसी भी फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है अबाउट डिजिटल करेंसी इन्वेस्टमेंट। पवन जानना चाहते हैं कि क्या ये सेफ है? डिजिटल करेंसी इंडिया में लीगल नहीं है, गवर्नमेंट ने टैक्स इसके ऊपर इम्पोज किया हुआ है। सो बाहर वाली कंट्रीज में ये वैलिड है, तो आई विल नॉट एडवाइज टू इन्वेस्ट इन डिजिटल करेंसीज until and unless it is legalized in India. Yes, you can do investment in the foreign countries, but tax has to be paid। और इसके लॉस के ऊपर जैसे कैपिटल गेन में कैपिटल लॉस आपको कोई शेयर मार्केट में होता है तो उसका बेनिफिट आपकी इनकम से सेटअप होकर होता है, बट डिजिटल करेंसी में अगर आपका कोई लॉस हुआ तो उसका कोई सेटअप आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आपका कोई प्रॉफिट हुआ तो उसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक का है कि वो अपना रिस्क प्रोफाइल कैसे असेस कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के पहले? रिस्क प्रोफाइल किसका असेस करना चाहेंगे आप अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में लेकर चलना चाहते हैं, या कुछ रिस्क आपकी एज के हिसाब से हम मार्केट में ले सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट का टेन्योर क्या है, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए। अगर आज आपकी एज 30 ईयर्स की है तो आपको पता है कि अभी आप 58 तक आपकी एज जानी है, तो आज मैं एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ कि ठीक है, ये इसमें मुझे इतने सालों में तो ग्रोथ बहुत अच्छी दे जाएगा, आज नहीं दे रहा, तो उसमें वो रिस्क प्रोफाइलिंग आपकी एज आपकी इनकम के हिसाब से होती है। और आपका एम क्या है, आपको किस तरह की रिटर्न चाहिए। थैंक यू मैम। सो दोज आर ऑल आवर क्वेश्चंस फॉर टुडे। एनीबडी, किसी को और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री टू पॉप इट इन द चैट एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक दोज। ऑलराइट, सो मैम, first of all, thank you so much again for taking out your time and delivering this session. बहुत helpful था and बहुत ही insightful, relatable और inspiring session था। फाइनेंस, मोटिवेशन, लाइफ लेसन्स सब कुछ एक ही सेशन में मिल गया वैसे तो। सो थैंक यू अगेन। हम इसकी फ्रॉम पीपीटी और वीडियो दोनों आपको शेयर कर देंगे क्लैन पे ही, या मनीष को आपके साथ शेयर कर देंगे, प्लस जो क्लैन के ऊपर हमने फॉर्मूलाज बनाए हैं वो भी आपको शेयर कर देंगे। दैट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच मैम। आपकी जर्नी, एनर्जी और सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो आपने पूरे इतने सिंप्लीफाई करके बताया है ना, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम लोगों ने ये पहले क्यों नहीं सीखा। बट थैंक यू सो मच। जब जागे एंड तभी फ्रॉम, सवेरा भारती। हाँ जी। जब जागे तभी सवेरा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। प्रबोधन का, फॉर एवरीवन, प्रबोधन का मोटिव सिर्फ सुनना या सीखना या सोचना नहीं है, इसके साथ ग्रो करना भी है टुगेदर। एंड टुडे सेशन वाज एन परफेक्ट एग्जांपल कि कैसे लर्निंग कैन एक्चुअली फील रियल एंड एनर्जाइजिंग। एंड गेस व्हाट, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रबोधन। तो अगर आपके पास में आइडियाज हैं या आप टॉपिक्स जो भी आप सुनना चाहते हो,
प्लीज आप हमारे साथ ये शेयर कर सकते हो ओवर ईमेल, व्हाट्सएप, स्टिकी नोट्स, मैसेजेस, whatever communication जो आपके लिए easy हो. And Prabodhan is for you, by you. Thank you so much, ma'am. Thank you, everybody. Till then, stay curious, stay inspired, and keep growing. Thank Let's you. see each other very soon in the next session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, am I audible?